ओके, आप तब तक रिवाइज कीजिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार देखते जाइए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या थे, ये सब आप एक बार देखिए। विल स्टार्ट इन कपल ऑफ मिनट्स। Pranay, what about your video? Does it work? प्रणय, आवाज आ रही है? Pranay, are you there? Have you just log in and you have gone somewhere? लग तो वैसा ही रहा है। Pranay, you have to be there when you are in the class. You have to be there and you have to switch on your video also. सर अभी ट्रांसलेशन ही पढ़ाइएगा ना? इसमें अभी हम लोग जाएंगे पेज नंबर 62 पे। चलिए, so let me start. We'll just put a message in the group. Okay. So in our previous class we have discussed about the factors that are affecting the transpiration. So Harshit, can you say that if temperature is high, the rate of transpiration will be high? It will be high. Will be high. Yes, sir. Okay. So Ayush, can you say that if humidity is high, what will happen to the rate of transpiration? It reduced. Reduced, yes. Reduced. And Samay, can you say that if the carbon dioxide level is increased in the atmosphere, then the rate of transpiration will decrease. Will decrease. So next, Pranay. Yes, sir. When the atmospheric pressure increases, then what happens to transpiration? Increase or decrease? A decrease one. Atmospheric pressure and transpiration are directly proportional or inversely proportional? Directly proportional. Directly proportional. Okay, you see here in page number 61. Okay, have you opened your textbook? Please switch on your video. Pranay. सर इन्वर्सली है ना सर? सर अभी रूम में नहीं है सर, अभी सीढ़ी पर है।
ये कनेक्शन की वजह से। So is there some problem? There is no light or anything like that. What is the problem? नहीं सर, नहीं सर, problem is that my connection is not so good. Okay, so what you are using? You are using your this regular Geo internet, something like that, on your mobile data, or you are using some Wi-Fi? Sir, mobile data. Mobile data. Okay, so inside your home, the mobile data, that mobile signal is not good. प्रणय, गया उसका सिग्नल। नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो दिक्कत होगा ना पढ़ाई में। Pardon, सुने। So I think that is an issue. If always the connection will be like this, then it is difficult for him to study. हर्षित, आपका कैसा है? आप क्या यूज कर रहे हो कनेक्शन? सर एयरटेल मतलब वाईफाई है सर। वाईफाई है ना? स्विच ऑन योर वीडियो। सर स्विच ऑन में सर रखेंगे कहाँ सर, इसमें प्रॉब्लम है ना सर, मतलब फोन सर, मतलब अगर सर वही मतलब ऐसा स्टैंड नहीं है सर जिससे फोन रख सके सर, अगर फोन गिर जाता है तो सर उसके कारण। आप जो स्कूल का ऑनलाइन क्लास करते हो कैसे करते हो? सर कैमरा ऑन करने नहीं बोलता है कैमरा ऑन सर, करने मतलब अगर हम ऑन करेंगे सर 2 मिनट बाद फोन ही खींच जाएगा सर, मतलब टेक्स्ट पे तो। यस सर, ये तो प्रॉब्लम है सर। हाँ, इसका बहुत आसान तरीका है। रबर बैंड होगा घर में, हाँ सर। बस रबर बैंड रख दो, रबर बैंड के ऊपर मोबाइल को रख दो, नहीं पिसलेगा। ओके सर। ओके, उनको ईयरफोन के ऊपर रख देते हैं। हाँ, एनीथिंग लाइक रबर मटेरियल यू यूज, इट विल हैव द ग्रिप, यू जस्ट पुट ऑन दैट वन। इट्स ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, आपका फोन भी ठीक रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है सर, अगले क्लास से मतलब कर लेंगे। हाँ, नहीं, रबर बैंड देख लो भैया, होता है घर में। ओके सर, ओके सर, 2 मिनट। चलो, next we are starting the significance of transpiration today. ये वाला पॉइंट मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू गिव द कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। ओके, क्योंकि जब वाटर का लॉस होता है, इट इज टेकिंग अवे दैट एक्स्ट्रा हीट along with it, so that is going to give the cooling effect to the plant. It is going to generate the suction force. What kind of force is generated? What kind of pressure? What kind of pull? खिंचाव टाइप का। Due to transpiration, कौन सा पुल बन रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ट्रांसपिरेशन होगा, अंदर में वाटर एक तरीके से फ्रेश वाटर आएगा तो सर्कुलेशन बनेगा। जैसे कि हम लोग के शरीर में जो खून है वो तो क्लोज्ड सर्किट है ना, ऐसा तो नहीं है यहां से खून अंदर आएगा और यहां से खून बाहर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। शरीर के अंदर ही खून रोटेट होते रहेगा, सर्कुलेट होते रहेगा। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में तो ऐसा कोई सर्कुलेटरी नहीं है। पानी रूट्स से ऊपर जाएगा और वेपर बन के निकल जाएगा। ठीक, तो जब तक वो वाटर इवेपोरेट नहीं होता है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम उतना एक्टिव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पानी जहां का वहां फंसा रहेगा, वो उतना हेल्दी सर्कुलेशन नहीं है। जितना वो ट्रांसपिरेशन होते रहेगा, सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा, वाटर एंड मिनरल्स का रोटेशन उतना अच्छा रहेगा, प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट। अंग्रेजी के 2 शब्द यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, ट्रांसपिरेशन इफेक्ट्स, इफेक्ट एंड इफेक्ट।
दोनों में क्या फर्क है ये आप देखो. The effect of transpiration on climate and the cooling effect of transpiration. Anyone can say. It is not an English class, but it is an important term. You should know the difference between effect and effect. सर इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना सर, इफेक्ट मतलब पता नहीं, इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना होगा. Hmm. हाँ सर, इफेक्ट मतलब वो किसी पे प्रभाव डाल रहा है सर, और इफेक्ट मतलब उस पे हो रहा है. Hmm. I will not go into the English part. Okay, please try to explore yourself with suitable example. दोनों में फर्क है, आपको पता होना चाहिए इफेक्ट और इफेक्ट का फर्क. तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर कंटेंट बनेगा, और जो वाटर वेपर कंटेंट बनेगा उसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह बनेगा. सो यू हैव गुड रेनफॉल एंड ऑल दोस थिंग्स. Okay, simple effect as that one. So if there is a forest, okay, a forest will have the more chances of rainfall compared to very arid place, desert place जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वहाँ पे कम रेनफॉल होता है. ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सब लोग जानते हैं. डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. इवेपोरेशन इज द लॉस. सर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में सर लिखा है ट्रांसपिरेशन इज एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस. नो सर, ये आएगा एग्जाम में, ये जरूरी है इसको, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? कोई जरूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. एक्सक्रीटरी प्रोसेस से सेक्रेटरी प्रोसेस. ओके, एक्सक्रीशन मींस व्हाट? बाहर निकलना क्या चीज बाहर निकलेगा? सर वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल. ठीक है, पानी क्या पौधे के लिए वेस्ट मटेरियल है? नो नहीं, इट्स नॉट ए वेस्ट मटेरियल. लेकिन पौधा उसको पर्पसफुली जाने दे रहा है. ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है जिससे कि वो पानी को जाने दे रहा है. पानी उसके लिए कोई वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन होने के कारण उसको कई फायदे हैं, इसीलिए वो हो रहा है. इसीलिए इसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं बोल सकते. ह्यूमंस फॉर एग्जांपल और एनिमल्स एंड अदर्स वन, वी डू एक्सक्रीशन, दैट इज वी आर रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस. वी डोंट नीड इट, so we are removing it. That is excretion, but here that is not the case. Evaporation, transpiration. Evaporation, loss of water from the surface of the water bodies in the form of vapor, whereas transpiration is loss of water in the form of water vapor from aerial parts of the plant. Evaporation is a physical change controlled by the temperature and humidity of the atmosphere, whereas transpiration is a vital and partly physical process that is controlled by both internal and external factors. It is a slow process, whereas evaporation is a fast process. इसमें आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है इवेपोरेशन, और इसमें नहीं समझने वाला कोई आपको ऐसा लग रहा है? डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. Okay, it's a basic thing, not so important. Also, you can see it is very clean. It's not very सर important. ट्रांसपिरेशन में भी वाटर जो है वो भी इवापोरेट होके ही ना बाहर निकलता है. हाँ, correct. There is a question, something you are asking, Prince. नहीं सर, मतलब डिफरेंस में सर ट्रांसपिरेशन में भी इवापोरेशन होता है सर, ये पूछ रहे थे. हाँ, ट्रांसपिरेशन में भी इवेपोरेशन है, लेकिन दोनों में फर्क है. क्या है? वही 3 पॉइंट है. एक स्लो प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है, एक नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें पौधे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. यहाँ ये चीज़ पौधे में हो रहा है. ओके, और ये जो इवेपोरेशन है, इट इज़ नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट पौधा भी अपने से उसको कंट्रोल कर रहा है. उसके स्टोमाटा से उससे निकलेगा वो सब चीज़ वो कंट्रोल कर रहा है. ये बेसिक डिफरेंस है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गटेशन एंड ब्लीडिंग. ये टर्म पहले भी आ चुका है. क्या आप गेस करोगे अभी गटेशन और ब्लीडिंग में फर्क? सर लॉस ऑफ वाटर. फर्क गटेशन. गटेशन कब होता है? सर रूट प्रेशर के कारण सर प्लांट के वेन से एक्सेस ऑफ वाटर जो रहता है वो निकल जाता है, और उस मतलब
क्या प्लांट बोलते हैं के उसको? वेन्स से, हाँ, इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लीव्स, यानी हाँ अगर सर, ये एक ठीक। लीफ है, ओके, और अगर ऐसा ऐसा डिजाइन है उसका फॉर एग्जांपल, तो ये जो एंड्स हैं इसके, ये एंड्स में आपको दिखेगा कि पानी के बूंद हैं। ओके, सो दिस हैपेंस जनरली इन हाई ह्यूमिडिटी, जैसे कि ठंडे का समय हुआ या ये सब टाइप के सीजन में, जब पानी में, जब हवा में बहुत नमी है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या होगा व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी? सर जब ह्यूमिडिटी ज्यादा डिक्रीज होगा होगा। तो सर डिक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन में। हाँ, देन ट्रांसपिरेशन विल बी लेस। तो क्योंकि स्टोमाटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है, वो पानी को निकालना है, क्योंकि रूट प्रेशर के कारण प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो वो प्रेशर से क्या होगा कि इन द एंड्स ऑफ द लीव्स देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइडनटोड्स। ओके, दैट इज गिवन हियर, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज हाइडाथोड्स। नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, हाइडाथोड्स। हाइडाथोड क्या है? जस्ट लाइक, हिडन पोर्स, हाँ, हिडन पोर्स, इस तरीके से भी याद कर इसीलिए सकते हैं। हाइडा हिडन। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा तरीका है। तो देखिए, स्टोमाटा जो है लीफ में है, पूरे तरीके से लीफ में बिखरा हुआ है, लेकिन ये जो हाइडाथोड है, ये कहाँ है? लीफ के एक्सट्रीमिटीज में है, एंड्स ऑफ द लीव्स। ये भी स्टोमाटा का जैसा पोर्स है, और जो एक्सेस वाटर है वो इस पोर्स के द्वारा बाहर निकलेगा, और वहां पे बूंद जैसा हम लोग को दिखाई देगा। So special pore bearing structures called hydatodes are present on the margins of the leaf to allow this exudation process, यानी बाहर निकलने के प्रोसेस को exudation बोलते हैं। Okay, so of course we know that guttation is taking place in the humid environment, but what is bleeding? How it is different? Bleeding यानी सर इंजरी के वजह से। इंजुरी के वजह से, चोट के वजह से। तो आप ये- देखिए, इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो कुछ पौधों में कटिंग करके उसका कलेक्शन किया जाता है। रबर ट्री। रबर, रबर में काट के लेटेक्स हम लोग, व्हाट इज लेटेक्स? लेटेक्स इज आल्सो सेल सैप, it is also cell sap, so we are collecting the latex. Similarly other ones are there in the making of that जो palm tree है, from the palm tree also they cut हाँ and सर, collect सर that, खजूर में खजूर होता है ना सर? खजूर हुआ, या this kind of palms are there, from that also they collect those fluid liquid. So what is that process? That is bleeding. आप इंजुरी कर रहे हो उधर, इंजुरी करने के कारण क्या हो रहा है, वो सैप वहां से बाहर निकल रहा है, उस चीज को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। So that is a bleeding process. Okay, so bleeding is by injury, whereas guttation is through hydatodes. Okay, both of these, okay, in this one the important one is root pressure. The root pressure is contributing to the removal of these liquids. क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम है, ट्रांसपिरेशन पुल का इफेक्ट गटेशन में है क्या? What is the main factor No, that sir. is affecting guttation? That is the root pressure is affecting the guttation. Bleeding, क्या bleeding का और ट्रांसपिरेशन का कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। नहीं, यहाँ ब्लीडिंग में भी जो है रूट प्रेशर का काम है। ये दोनों प्रोसेसेस रूट प्रेशर से ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ट्रांसपिरेशन पुल से उसका लेना देना नहीं है। ट्रांसपिरेशन पुल टॉल ट्रीज में वाटर एंड मिनरल्स को ले जाने का काम करता है, उसका ज़्यादा रोल उधर है। टू सम अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर देयर इज द फिगर 5.14। ठीक है, हाँ प्रणय आप देखिए फिगर को, देखिए 5.14 फिगर देखिए टेक्स्ट बुक में। हैव यू ओपन्ड द टेक्स्ट बुक? प्रणय आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रणय?
ओके, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट फिगर 5.14, इसमें हु इज गोइंग टू टेल? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ समय। समय आप देखिए इस फिगर को और आप बताइए ये इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक देखिए इसमें ब्रॉड आउटलाइंस क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, ये वाला चीज आपको दिखाई दिया? हाँ सर। हाँ, लाल में लिखा हुआ है रूट, स्टेम, लीफ। अच्छा, तो 3 सेक्शंस में इसको बनाया गया है। इसमें लेजेंड क्या है, पढ़िए। जो फिगर का डिस्क्रिप्शन होता है उसको लेजेंड बोलते हैं, उसको पढ़िए। Diagrammatic representation of the path of water through the plant and the various physical forces which are responsible for the movement within and loss of water outside. मतलब diagrammatic representation of the path of water through the plant and the various physical forces that are responsible for the movement within and the loss of water outside. तो ये डायग्राम क्या बता रहा है, वाटर प्लांट के थ्रू कैसे जा रहा है, इसमें क्या फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, एंड ओके हाउ दिस लॉस ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। कंप्लीट समरी है एक फिगर में, ठीक है। अब आयुष टू आप बताइए कि रूट में क्या हो रहा है। सर रूट में सर इम्बिबिशन और ऑस्मोसिस की वजह से सॉइल वाटर अंदर जा रहा है और फिर जाइलम के थ्रू वो स्टेम में जा रहा है सर। सो स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे। एक तो हो गया रूट वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन एंड ऑस्मोसिस एंटरिंग द रूट हेयर, from the root hair it will pass through the cortex cells, from the cortex it is going to the xylem, xylem में आने के बाद वो ऊपर जाएगा स्टेम में, ठीक। ये एक स्टेप हो गया जो कि रूट में हो रहा है। दूसरा आयुष वन आप बोलिए स्टेम में क्या हो रहा है। बोलिए आयुष्मान। सर स्टेम में यहाँ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। हाँ, तो आपको क्या बताना है, आपको सीक्वेंस बताना है, पानी कैसे फ्लो हो रहा है, सीक्वेंस बताइए। रूट में जाइलम से एंटर होके स्टेम में आया, वहां से बोलिए। सर जाइलम से जाइलम वेसल्स और ट्रेचेट्स में पानी जाता है जिससे कोहेजन, रूट प्रेशर और कैपिलरिटी लगता है, और उसके बाद सर वो इंट्रासेल्युलर स्पेस और फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जल जाता है। अभी हम लोग वहां ऊपर लीफ में नहीं गए, अभी आपको स्टेम को पहले कंप्लीट करना है। तो देखिए 3, 4, 5 ये 3 प्रोसेस यहाँ पे बताया, कोहेशन, रूट प्रेशर, कैपिलरिटी, ये 3 प्रोसेस आपका स्टेम में हो रहा है। और जो लेटरल साइड में जा रहा है मेडुलरी रे एंड कॉर्टेक्स, इसके द्वारा वो जा रहा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होने के लिए, लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होगा। और ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड से ये अब पहुंच रहा है लीफ में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कौन बताएंगे, हर्षित आप बताओगे लीफ में क्या हो रहा है। सर लीफ में पहले सर वो सर एक्साइलम में जा रहा है सर। हाँ, जाइलम में आया। हाँ सर, उसके बाद सर ब्लू एरो को फॉलो कीजिए।
सर उसके बाद सर गटेशन हुआ सर। गटेशन तक जाने के पहले ये ब्लू एरो कहाँ गया, किस सेल्स में गया पहले? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हाँ, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में गया। स्पॉन्जी सर पैरेन्काइमा फिर से लोअर। हाँ, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से वो जो इसका इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे वो पानी गया जहां पे वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होने के बाद ये कलेक्ट हो गया आपका सब स्टोमेटल स्पेस में, जहां से बाय ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन बाहर निकल सकता है, नहीं तो बाय द प्रोसेस ऑफ गटेशन ये डायरेक्टली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से हाइडाथोट्स के द्वारा बाहर निकल सकता है। And there is the last process on the top that is given as the cuticular transpiration. Okay, तो ये एक फिगर है जिसमें आपके सभी प्रोसेसेस का और उसके फ्लो का एक फिगर में समरी है। रूट, स्टेम, लीफ, what are the processes? Imbibition, osmosis, cohesion, root pressure, capillarity. In the leaf what we are seeing, there is the guttation, stomatal transpiration and cuticular transpiration. Okay, processes involved are these are the processes are there. Okay, any doubts you are having? Okay, नो सर। okay, so, सर ये एक बार वापस पूछना, कंफ्यूजन था सर, अभी भूल रहे थे, एक बार पूछ ले रहे हैं सर। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन स्लोएस्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ना? ठीक है। हाँ, जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। बस अब होम का हाँ, क्यूटिकुलर सबसे स्लो है ना? सबसे स्लो है क्यूटिकल। अब फोन को 2 घंटा के लिए रख दो मेरे पास। हाँ, ओके, 3 things are there. रात Next, पूरा रात बैठेगा। next, there is the difference between transpiration and guttation. Okay, so who will read out this one? Pranay, read out. पढ़े Pranay will read. ट्रांसपिरेशन और गटेशन का डिफरेंस आप पढ़िए, पॉइंट नंबर 1। सर अभी बुक नहीं है मेरे पास सर। अभी बुक नहीं है मेरे पास सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, अभी बुक नहीं है मेरे पास। टेक्स्ट बुक नहीं है, नहीं सर अभी नहीं। बट यू हैव a टेक्स्ट बुक, राइट? हाँ सर, यस सर। Then what happened? Now at this time I'm not having. No, you have to keep, when the class is in progress, you should keep the textbook before you. Yes sir, I have told you before. I'm not inside. But you have purchased new textbook, no? I think your mother also told you have the textbook. You have got the textbook now. टेक्स्टबुक रखिए पास में, जब क्लास प्रोग्रेस में है टेक्स्टबुक को पास में रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप टेक्स्टबुक को रिफर करोगे पढ़ते समय। ओके, राइट, हु इज गोइंग टू रीड आउट? बोले हाँ, पढ़ो, आयुष तो पढ़िए। the first one. In guttation, it occurs from the edges of the leaves by hydathodes. ये 5 पॉइंट टेबल 5.3 पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन। The first, in transpiration, the water is lost in the form of water vapor, and so in guttation, what is lost in the form of water droplet. 4th पॉइंट तक पढ़िए। In the transpiration, pure water only changes into vapor. In guttation, water lost contains minerals, fats in solution. So in ठीक है, transpiration, ट्रांसपिरेशन ओनली प्योर वाटर वेपर है, वाटर इज लॉस्ट इन द, लेकिन गटेशन में वाटर वेपर नहीं जा रहा है ना, वाटर पूरा जा रहा है, तो इसीलिए उसमें मिनरल्स वगैरह भी बाहर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, 3rd पॉइंट। so in transpiration, water vapor is lost through stomata, lenticles, and cuticle, and in guttation, water is lost through pores, hydatodes found at the end of veins. So in transpiration, it may lead to loss of turgidity in leaf cells to cause wilting. In guttation, it has no effect on the turgidity of the leaf. ठीक है, ये बहुत अच्छा सब डिफरेंसेस है इसमें, ट्रांसपिरेशन और गटेशन। तो इसमें एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आराम से बनता है।
ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर एक तो है हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन एक नंबर बनता है। हाइडाथोड्स, द थ्रू गटेशन वाटर इज लॉस्ट थ्रू विच स्ट्रक्चर? हाइडाथोड्स, ये नंबर 1 है। दूसरा, that the mineral salts may be lost during which type of process? ओके, आपको is not lost during which of the process, तो उसमें 3 चीज दे देगा। एक हो गया ट्रांसपिरेशन, गटेशन और ब्लीडिंग। क्या ब्लीडिंग में मिनरल्स का लॉस हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। हो रहा है, हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन ही एक है जिसमें ओनली वाटर वेपर जा रहा है, तो वो एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सो द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टर्जिडिटी ऑफ द लीफ इज अफेक्टेड बाय ट्रांसपिरेशन। गटेशन, ब्लीडिंग में टर्जिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? 5 to 8। सर क्लास 9 का बायो क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी में बड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया था चैप्टर के बीच पे, वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा? बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मोटा मोटी पैटर्न फिक्स्ड है। ओके, सो मतलब एक चैप्टर के बीच से सर पूरा पैराग्राफ आ गया था और बहुत जगह डैश था, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, वैसा आएगा सर क्वेश्चन, या फिर सर सिर्फ स्टोरी टाइप का ही आएगा? डोंट फिल इन द ब्लैंक्स आता है? डोंट वरी, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। हाँ, नेक्स्ट वन हु इज गोइंग टू स्टडी 5 to 8? सर हम पढ़ दो। पढ़ दो। Stomatal transpiration is regulated by guard cells. गार्ड सेल्स, हाँ। Opening of hydrathodes cannot be regulated. कैनॉट बी रेगुलेटेड। हाइड्राथोड्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। वो जब जैसे रात भर का रूट प्रेशर बनते रहेगा, पानी ट्रांसपिरेशन से नहीं निकल रहा है, पूरा रूट प्रेशर से सीधा हाइड्राथोड से पानी बाहर निकल जाएगा, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन गार्ड सेल्स का रेगुलेशन है। ओके, गुड, नेक्स्ट पॉइंट। Transpiration occurs in the presence of sunlight. Guttation occurs at night or early morning. और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। गटेशन रात में, अर्ली मॉर्निंग में, वेर एज ट्रांसपिरेशन ओनली डे टाइम। ओके, सो भैया तो दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन पुल भी बनता है, करेक्ट? और यही ट्रांसपिरेशन पुल के कारण बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज में पानी पहुंच रहा है। रात में क्या होगा? पानी कैसे जाएगा ऊपर? सर रूट रात में पानी की जरूरत नहीं होगा। ऐसी क्या बात है जो कि रात में पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा? तो दे वुड बी स्लीपिंग, सोने वक्त पानी। ये तो हमको भी नहीं पता कि रात में पौधा सोता है कि नहीं, ये तो नहीं पता। उसको भी नींद आती है कि सब, वो तो आए तो एक जगह पे खड़ा है, हमको लगता है कोई ऋषि मुनि टाइप का साधना करता होगा, उसको क्या है, सोना और जागना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो पॉइंट नहीं है, पानी की जरूरत तो है। तो शायद जो ओश गिरता है सर उससे सर वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ओस से उसका काम चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रूट प्रेशर से आपका कंटिन्यूअस चैनल तो बन गया, यानी जो जाइलम है वो पूरा एक पाइप है ना, तो पाइप में पानी भरा हुआ है नीचे से ऊपर। अब उसको मेंटेन करके रखना है। रात में क्या ट्रांसपिरेशन होता है कि नहीं होता है? सर ट्रांसपिरेशन रात में होता है सर। रात में हवा नहीं चलता क्या? चल क्या रात में ड्राई एयर बाहर नहीं हो सकता है क्या एटमॉस्फेयर में? हो सकता है। तो ट्रांसपिरेशन बंद तो नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन चलेगा रात में भी। तो ट्रांसपिरेशन रात में भी चल रहा है लेकिन बहुत कम रहेगा कंपेयर टू सनलाइट के प्रेजेंस में, जो कम रहेगा। तो रात में क्या होता है, जो रूट प्रेशर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वाटर के इस अपटेक को मेंटेन रखने के लिए। और छोटे पौधे में क्या रहता है, यही रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। छोटा पौधा है, कम हाइट का है, इसलिए रूट प्रेशर उसका ज्यादा रहता है। ट्रांसपिरेशन से पानी नहीं निकल पा रहा है, रात में गटेशन से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
Transpiration cools the plant body. Guttation has no cooling effect on the No plant. cooling effect on the plant. Yes. Next one. Transpiration occurs during day condition. Dry Guttation condition. occurs in humid conditions. Humid conditions. Okay. So that is good. So that is the basic differences between transpiration and guttation. So shall we do the question answers? सर प्रोग्रेस चेक का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का आंसर कैसे लिखेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं, पूरे ही देख लेते हैं. लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन टू द प्लांट. वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट्स इन ब्रिंगिंग रेन. सर ये कैसे लिखेंगे? क्या है उसमें लिखने का? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बन के निकला एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर गया वो ऊपर जाके बादल बन गया. बादल टहलते हुए इधर उधर गया, जहाँ थोड़ा सा ठंडक हुआ तो बारिश हो गया. इसमें क्या बड़ी कहानी है इसमें? ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा. सर ऐसे ही लिखेंगे. अरे नहीं तो क्या, वैसे ही लिखोगे? ऐसा बेवकूफ क्वेश्चन तुमको बोर्ड में आने वाला है नहीं. और सर क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ये तो दिया है सर. हाँ, ये तो पीछे दिया था ये सर. क्वेश्चन आपको आएगा, बोर्ड में आ सकता है. गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन ही है. इसमें क्या बोला है? राइट 1 और 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन. और ब्रैकेट में क्या लिखेगा? बेस्ड अपॉन कोई एक हाँ, कोई एक उस फैक्टर के ऊपर बेस करके आपको डिफरेंस बताना है, वो चीज रहेगा. ओके. तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और गटेशन का डिफरेंसेस का 8 पॉइंट्स है. तो उसमें से जैसे कि वो बोलेगा द स्ट्रक्चर थ्रू विच द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन गटेशन. इस टाइप का हो गया. ओके, इस टाइप का हो सकता है. दूसरा, प्लांट्स हैव नो ब्लड येट वी समटाइम्स से दैट प्लांट इज ब्लीडिंग. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? इसको सर ये आएगा बोर्ड में. ये सोच विचार करने वाले प्रश्न हैं. इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है. तो नया नया बच्चा जो आता है ना पढ़ने के लिए, तो होता है ना, हाँ ब्लीडिंग, प्लांट इज ब्लीडिंग, हाँ ये सब टाइप. हाँ हाँ, एक थॉट वाला क्वेश्चन है वो, और कुछ नहीं. चल नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. Page 64, MCQ. Number 1, transpiration pull will be maximum under which set of following conditions? देखिए और बोलिए. Sir, open stomata, dry atmosphere and moist soil. ओपन स्टोमाटा, ड्राई एटमॉस्फेयर, मॉइस्ट सॉइल. दूसरा है ओपन स्टोमाटा, हाई ह्यूमिडिटी तो नहीं होगा. तीसरा, ओपन स्टोमाटा, हाई ह्यूमिडिटी तो नहीं होगा. क्लोज्ड स्टोमाटा तो सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट फर्स्ट वाला आंसर ही होगा. ऑल ऑफ यू ओके विद दैट? देखिए, ओपन स्टोमाटा, क्लोज्ड स्टोमाटा, तो हाई ट्रांसपिरेशन विल बी विथ ओनली ओपन स्टोमाटा, पॉइंट नंबर 1. ड्राई एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ड्राई एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहेगा. पहला वाला में उसी में हो गया आंसर. चलिए नेक्स्ट, विच डिक्रीजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ, सॉरी प्रोपोर्शन होता है सर. हाँ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज. एक एक इंडिविजुअली पूछते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. हाँ, प्रणय बोलिए. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 65. वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज बिग साइज ऑफ द लीफ, color of the leaf, sunken stomata, sunny day. बोलिए.
क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? One of the internal factors which affect the rate of transpiration is big size of the leaf, color of the leaf, sunken stomata, Sunken sunny day. stomata. Sunken stomata. Correct answer? सर तब से ही बोल रहे थे, शायद आवाज नहीं आ रहा। नहीं, आवाज नहीं आया था। Next one, guttation takes place through stomata, आंसर। You want to answer the next question also? Okay. Guttation takes place through stomata, lenticels, lower epidermis of the leaves, hydatodes. प्रणय आप आंसर कीजिए। 4th क्वेश्चन भी आंसर कीजिए। वाला भी Hydatodes. Guttation also takes place by hydatodes. Direct question. Next one. Transpiration will be fastest when the day is. Who will say? Okay, Samay answer. Transpiration will be fastest when the day is. Sir, hot, dry, and windy. Windy. Correct answer. Number 6. Most of the transpiration in tall trees occurs through. Prince Bolo. Sir, most of the transpiration in tall trees occurs through the lenticels. क्या यार तुम पढ़ो क्या क्या उसमें है ऑप्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ो ऑप्शंस क्या है। टॉल ट्रीज में ट्रांसपिरेशन सर टमाटा तो लीव्स में होगा सर। टॉल ट्रीज में सर ट्रांसपिरेशन, एक मिनट सर, बाक। बार्क से ट्रांसपिरेशन होता है क्या? कहीं पढ़े हो क्या? सर टॉल ट्रीज में ट्रांसपिरेशन सर टमाटा से होगा। नहीं सर, टमाटा क्यों टॉल ट्रीज में लीव्स नहीं रहता? हाँ सर, लेकिन टमाटा तो सर ओपनिंग है ना सर, जहाँ से पानी बाहर निकलेगा और हाँ, मतलब पानी मतलब ट्रांसपिरेशन होगा। हाँ सर, टमाटा से तो ट्रांसपिरेशन ही होता है। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ? आंसर बोलो, क्या समझ में आया? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या समझ नहीं आया। Read the question again. Most of the transpiration in tall trees occurs through stomata, lenticels, cuticle और bark. सबसे फालतू आंसर है बार्क। बार्क तो हो ही नहीं, कहीं पे टेक्स्ट बुक में देखा क्या बार्क है? कहीं लिखा हुआ ट्रांसपिरेशन आकर्ष थ्रू बार्क कहीं नहीं पढ़ा ना, तो फिर बार्क कहाँ से बोलते हो? ये तो है ही नहीं। सबसे पहले उसको काटो। बाकी रहा स्टोमाटा, लेंटिसेल्स और क्यूटिकल। सबसे कम ट्रांसपिरेशन किससे होता है? सर क्यूटिकल से होता है। अभी अभी पूछा भी था तुमने, तो बताया क्यूटिकल से सबसे कम होता है। बाकी बचा कौन? स्टोमाटा और लेंटिसेल्स। स्टोमाटा एक लीफ में पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना स्टोमाटा रहता है? सर 10,000। 1000 से 10,000 स्टोमाटा है। ये पॉइंट हम लोग कई बार बोल चुके। और लेंटिसेल्स जो है बहुत कम, उसके हिसाब से बहुत कम। कि तुम सोच रहे हो कि भाई लंबा ट्री है तो उसमें लेंटिसेल्स भी तो बहुत होंगे, यही ना? व्हाट इज योर लॉजिक? हाँ सर यही है। हाँ वही लॉजिक लगा रहे हो ना कि बहुत लंबा गाछ है तो उसका स्टेम भी बहुत लंबा होगा, तो उसमें लेंटिसेल्स भी बहुत होंगे। तो भैया ये आप देख लो, क्या उसमें क्या पत्ते नहीं होंगे क्या? 10 पत्ता मिला के उतना स्टोमाटा बना लेगा जो कि उतना बड़ा ट्री लेंटिसेल्स नहीं दे पाएगा। Okay, so most of the transpiration, whether it is a tall tree or small tree or whatever tree, it will occur through the stomata. So that is why हमने कैसा लिखा था? Stomata डबल, उसके बाद लेंटिसेल, उसके बाद क्यूटिकल। ट्रांसपिरेशन इधर देखो, इस तरह डबल ट्रिपल एरो आप मार सकते हो। इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। स्टोमाटा इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, transpiration is best defined as
आयुष्मान बोलिए. आयुष्मान इज नॉट देयर. ओके, हर्षित बोलिए. Yes, sir. Transpiration is best defined as. सर मेरे में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 चला गया. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 65 में. हाँ सर, बट मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है. अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ लो. अच्छा क्वेश्चन दिया. हर्षित आंसर करो. सर ऑप्शन बी होगा क्या? डी, रिलीज ऑफ वाटर बाय द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर. सर डी नहीं सर, बी बोले हो. बी, evaporation of water from the aerial surface of the plant. Correct answer. Yes. Why not C? बेस्ट बोला था. क्योंकि C में एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट नहीं बताया गया है. तो सर बेस्ट डेफिनेशन. हाँ, जबकि B में वो मेंशन किया गया कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस, और ये डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन का, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दैट इज. चलिए नेक्स्ट. नेम द फॉलोइंग्स. फटाफट आंसर करना है, एक एक करके, रैपिड फायर क्वेश्चन है. ओपनिंग्स इन द स्टेम थ्रू विच ट्रांसपिरेशन अकर्स. आयुष टू. Openings Sir, on the lenticles. stem. Openings on the stem through which transpiration occurs. Lenticles. All of you look at your textbook. Okay, next. Samay boliye. B, the process by which the intact plant loses water in the form of Guttation. droplets. Guttation. Next, Prince Bolo. C, an instrument used to find the rate of transpiration. Sir, 1 minute. Sir, the instrument used to find the rate of transpiration. तो फोटोमीटर. पता नहीं सर, याद नहीं सर. तो फोटोमीटर. Photometer. Next, Pranay बोलिए. A plant in which the stomata are sunken. Sunken stomata इधर एग्जाम्पल टाइप का कुछ होगा. नीरियम, NERIUM, नीरियम. ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. ठीक है, नीरियम में जो है वो रूट हेयर रहता है उसके ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही बताइए प्रणय. द apparatus to record the rate of transpiration in a cut shoot. सर ये भी तो फोटो. सर वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लेंटिसल ही होगा सर. क्वेश्चन नंबर 6. हाँ सर, मल्टीपल चॉइस का. हाँ, मोस्ट ट्रांसपिरेशन इन टॉल ट्रीज अकर्स थ्रू लेंटिसल्स. गूगल बाबा बोल रहे हैं क्या? हाँ सर. हाँ ठीक है, उसको रखो बगल में, कोई फायदा नहीं. नेक्स्ट वन, ई, द apparatus to record the rate of transpiration in cut shoot. हाँ हर्षित बोलो. फोटो. हाँ ये भी है, लेकिन इसको हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? गैनोंग. सर क्या नाम? ओके, ये एक फाइन चीज है, इसको आप याद रखेंगे. और ये गैनोंग फोटोमीटर का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है इस बार. ठीक है, क्योंकि फोटोमीटर तो है जनरल, लेकिन फोटोमीटर, गैनोंग फोटोमीटर के ऊपर भी पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से नहीं आया है. इस बार आने का चांस ज्यादा है. ओके, ये आप देख लेना. गैनोंग फोटोमीटर. गैनोंग फोटोमीटर में क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे फिगर 5.5 पेज नंबर 57 में यहाँ पे विथ रूट्स नहीं डाला गया, इसको कटिंग करके उसको जो है डाला गया है. ओके, फ्रॉम ए कट शूट.
ठीक है। नेक्स्ट प्रिंस बोलो, एनी टू पार्ट्स ऑफ द लीफ विच अलाउ ट्रांसपिरेशन। सर सर स्टोमेटा और क्यूटिसल। सर 6 में था ऑप्शन स्टोमेटा और क्यूटिसल, ए और सी जो है सर वही आंसर। सर कुछ भी ना सर, क्यूटिकल भी हो सकता है ना सर, लेंटिसल क्यूटिकल। स्टोमेटा भी देख सकते हैं। पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का पार्ट बताना है। एनी टू स्टोमेटा पार्ट्स ऑफ और द लीफ, क्यूटिकल। तो स्टोमाटा है और क्यूटिकल है। हाँ सर, क्यूटिकल लीफ नहीं देखते। हाँ, क्योंकि हाइडाथोड्स नहीं बोल सकते, वो गटेशन है। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा एंड क्यूटिकल। नेक्स्ट है एंड प्रिंस, डोंट बी सो कैजुअल, ठीक है सर। यू शुड नो द टर्म विद द स्पेलिंग। समथिंग कूटी कटी वो सब नहीं चलता है, प्रॉपर टर्म यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट वन, प्रणय, द स्ट्रक्चर in a leaf that allows guttation. Structure in the leaf that allows guttation. Hydathode. Okay. Next. Why your voice is not coming properly, Pranay? फिर उसका नाम नहीं याद आ रहा था। ओके ओके। हाँ, ये आपका जो है थोड़ा जो सिग्नल है, मोबाइल का जो सिग्नल है वो ठीक से नहीं आता है अंदर घर में। सर फुल रहता है बट नेटवर्क स्पीड बहुत कम रहता है। ओके, सो वेयर यू आर इन, यू आर समवेयर क्लोज टू दिस व्हाट यू से शीतला स्थान एंड दिस साइड, उसके आगे वो जो है कमल नगर साइड। बिरजू कालिस्तान देखे? कहाँ पे? बिरजू कालिस्तान देखे हैं? बिरजू कालिस्तान, हाँ 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 सर। अच्छा, आई थिंक वहाँ पे भी टावर वगैरह तो ठीक ही रहता होगा। आई डोंट नो। जियो है। हाँ, जियो में ज़्यादा दिक्कत देता है। देख लो, अगर सिम चेंज कर सकते हो तो कर लो, है ना। ये जियो के भरोसे मत रहो, जियो के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। एयरटेल भी है। एयरटेल भी है, उसका तो और खराब है। अच्छा अच्छा, एयरटेल का और ज़्यादा खराब आ रहा है वहाँ पे। देख लो, आई थिंक बट यू हैव टू कंसिडर, है ना। थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा है इसमें, अगर आपको साफ नहीं सुनाई देगा, ब्रेक होते रहेगा तो दिक्कत होगा ना आपको भी समझने में। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ सर्टेन लीव्स। हाँ समझ, गटेशन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। समय बोलिए। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर vapor from the aerial parts of the plant. Closing of stomata and shedding of the leaves reduces transpiration. All this you can easily answer, nothing is there in this. Okay, true and false देखते हैं। Most transpiration occurs at midnight. False. Transpiration, Midday. yes, transpiration creates a pull for upward movement of sap. हाँ सर। True. True. Wind velocity has an effect on transpiration. True. Atmospheric humidity promotes transpiration from a green plant. False. Reduces. Reduces. Transpiration helps to cool the body of the plant. True. Okay. लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 7, एक्सपेरिमेंट वाला, सब खोलिए उसको देखिए। क्वेश्चन कौन पढ़ेंगे? प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन, वन ऑफ यू। सर हम पढ़ें? पढ़िए। The apparatus shown in the following diagram is gyrophotometer designed to demonstrate unequal transpiration
from the two surfaces of a dorsiventral leaf dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf, equal amount of calcium chloride was taken in two vials, which were placed in two cups. The leaf was placed between the cups. The ends of the cups were closed with the corks, through which two mercury manometers were connected. After few hours, calcium chloride were taken out and weighed again. अब देखिए फिगर को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एक पत्ता है, पत्ता के ऊपर और नीचे ये आपका सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कुछ ग्लास का बना हुआ, उसको एकदम चिपका दिया लीफ के ऊपर, और जो ऊपर का सरफेस है नीचे का सरफेस है, दोनों की तरफ जो है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट छोटे से वायल में रखा गया है। उसके बाद यू शेप्ड का या एस शेप्ड का एक ट्यूब है जिसमें कि मर्क्यूरी है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है यहां पे? कोबाल्ट क्लोराइड तो हमने देखा, कोबाल्ट क्लोराइड के किस लिए काम आ रहा था? COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, हाँ, जो ट्रांसपिरेशन हुआ, जो वाटर वेपर निकला, तो वाटर है कि नहीं है, मॉइस्चर है कि नहीं है, तो कलर क्या से क्या चेंज हो रहा था? ब्लू से पिंक, ब्लू से पिंक चेंज हो रहा था। जब वाटर वेपर आता है तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड यूज किया गया। कैल्शियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक, यानी वो क्या करेगा कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो ये कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। पहले, अभी आजकल आप देखते होंगे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग खरीदते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रहता है जिसमें कि रखता है, हाँ, उसमें लगता है कि ऐसे ऐसे छुओगे तो लगता है क्या पता नहीं कुछ बीड्स है या कुछ है, और कभी फाड़ के देखना अंदर तो लगेगा बॉल बॉल जैसा बना हुआ, और उसमें, हाँ, और उसमें बोलता है कि इट इज टॉक्सिक, डोंट ईट इट, डोंट टेक इन योर माउथ। Okay, so that one is not calcium chloride, that is a silica beads, but before this silica beads were being used, we were using the calcium chloride. लैब वगैरह में भी आप देखोगे कि स्पेसिमेंस वगैरह को मॉइस्चर से बचाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के इस डिब्बा में करके रखा जाता है। तो ये क्या कर रहा है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। The question here is, what is the purpose of keeping calcium chloride vials inside the cup? It will absorb moisture. Absorb the moisture. After a few hours, calcium chloride vials were taken out and weighed again. Will you expect any difference in the weight? If so, give reason. हाँ sir. Definitely, because transpiration is taking place. Water vapor का loss हो रहा है तो वो water vapor को ये calcium chloride ले लेगा। क्या ऊपर का जो कैल्शियम क्लोराइड का वायल है और नीचे जो कैल्शियम क्लोराइड का वायल है, दोनों में फर्क रहेगा कि नहीं? हाँ सर, रहेगा। क्यों? सर वेपर है वो ऊपर जाएगा तो ऊपर सर नहीं सर, नीचे वाला ज्यादा भारी रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा। क्यों? सर क्योंकि स्टोमेटा लीफ के नीचे वाले लेयर में अवेलेबल रहता है, और अगर दोनों तरफ से ग्लास में पैक्ड है तो स्टोमेटा ऊपर जाएगा, सॉरी, ट्रांसपिरेशन का इवापोरेशन होने के बाद जो वाटर वेपर रहेगा ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे ही गिरेगा ना। हाँ, लीफ के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि स्टोमाटा का, जब भी आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसका, लीफ का जो सेक्शन है, लोअर एपिडर्मिस दिखा रहा है 5.10, लोअर एपिडर्मिस 5.8, यहां पे भी देखो लोअर एपिडर्मिस वाला एरिया में दिखा रहे हैं 5.7, यहां पे भी वही लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस की तरफ में कोई स्टोमाटा का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमाटा रहता है, अपर सरफेस में कम रहता है। इसीलिए जब इस टाइप का हम लोग बनाएंगे
तो नीचे क्योंकि ज्यादा स्टोमाटा है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, नीचे वाला जो कैल्शियम क्लोराइड का वायल है इसका वेट ज्यादा बढ़ेगा. व्हाट was the purpose of using a manometer? What is a manometer? तो शायद वो प्रेशर नापने के लिए यूज होता है सर मैनोमीटर. Manometer is to measure the pressure. तो do you think that there will be any change? सर नहीं लगता है सर. क्योंकि होगा सर प्रेशर चेंज. why you think? For whatever reason होगा या नहीं होगा, either case. एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर शायद एज वी मूव. सर अगर प्रेशर देखेंगे तो ग्लास के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में डिफरेंस होगा सर. ग्लास के अंदर प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन के कारण. देखिए जो आपका पेज नंबर 46 है उसमें रूट प्रेशर के बारे में बताया गया, उधर मैनोमीटर दिखाया गया है. मतलब डायरेक्ट क्या किया, उसके स्टेम को काट दिया और उसको मैनोमीटर के साथ लगा दिया. जितना सैप बाहर निकलेगा उतना मर्क्यूरी डिस्प्लेस होगा और इससे पता चलेगा कि रूट प्रेशर कितना है. तो प्रेशर नाप रहा है मैनोमीटर, प्रेशर नाप रहा है, रूट प्रेशर को इन दिस केस रूट प्रेशर नाप रहा है. लीफ से जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है और उसमें भी आप कैल्शियम क्लोराइड लगा रहे हो, do you think that there will be a change in that pressure difference and all? सर होगा जरूर, क्योंकि सर कैल्शियम क्लोराइड तो सिर्फ वाटर वेपर H2O मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपिरेशन से निकलेगा वो तो ग्लास में ही रहेगा ना सर. कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा क्या? नहीं सर सॉरी ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाएगा. हाँ सर. तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा ये मर्क्यूरी के लेवल को हटाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, फॉर ए फ्यू आवर्स वॉट एवर इट मे बी? यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, बाहर जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो अंदर ना चले जाए. अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे, मर्क्यूरी डाल के आप क्या कर रहे हो, बाहर से उसको कट ऑफ कर दिए. बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा. क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक हो सकता है? नहीं पता सर. देखिए मर्क्यूरी डालने के कारण बाहर का जो एयर है वो अंदर नहीं जा रहा है, मॉइस्चर अंदर नहीं जा रहा है. लेकिन इसके लिए आप सिंपल अगर उसको कॉर्क से बंद कर देते या कोई चाबी से बंद कर देते तो भी काम चल जाता. लेकिन मर्क्यूरी डालने का ये मकसद है कि प्रेशर में अगर कोई चेंज आएगा उसको भी आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर में चेंज है. दैट इज द मेन पर्पस. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एनीवे. ओके. Okay, I think that is okay. आप भी कोशिश करना, कुछ क्वेश्चंस इसमें आप भी ट्राई करो. अगर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछिए. Okay, we will solve some other questions also. Otherwise, in the next class, we are starting the new chapter, that is the photosynthesis. Okay, now this is our today is Thursday. So in the coming weekend we will have the another test again. Okay, so in the biology we have already covered this genetics. Next chapter is absorption by the roots. This chapter we will do the test. Okay, either Saturday, Sunday or Monday. नहीं Monday में नहीं, Saturday, Sunday में मैं रख दूंगा absorption by roots. Okay, ठीक है सर. चैप्टर नंबर 4 का ये होगा और केमिस्ट्री का
जो हम आपको बताएंगे बाद में। ओके ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।